Welcome, my dear students. Welcome to Mathological. Let us start another session on time and work. And if you have not already subscribed to the YouTube channel, make sure to subscribe to it as well as press the bell icon as well. You can also message me on Telegram at ADI TYA KT. We're doing some questions in today's session with a special case where let us say there are two persons A and B. Two persons A and B, and they do a work together. And if they are doing a work together, then in that case time taken is equal to T hours, okay, T hours or days, whatever the case. So if they are working together, अगर वो साथ में काम कर रहे हैं तो फिर टाइम लग रहा है T hours का. But if A is working alone, अगर A अकेले काम कर रहा है तो फिर टाइम कितना लगेगा A को? लेट अस से A को टाइम लग रहा है T प्लस A hours का. And if B is working alone, then let us say B को टाइम लग रहा है T प्लस B hours का. So this is the scenario when we've been given the relation between time when A is working alone, when B is working alone, when A and B both are working alone. अगर ऐसा हमें कोई रिलेशनशिप गिवन है तो फिर उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे समझेंगे, तो एक बार देख लेते हैं. ठीक है. सो इफ A and B are working together, they are taking T hours. If A is working alone, he is taking T plus A hours, and if B is working alone, he is taking T plus B hours. Okay. एफिशिएंसीज मान लेते हैं A और B की, कैपिटल A एंड कैपिटल B. These are efficiencies. तो एफिशिएंसी की वैल्यूज हमारी A B और A और B साथ में काम करेंगे, A प्लस B हो जाएगा. एंड दिस इज वैल्यू ऑफ टाइम. और वर्क सारे केसेस में इक्वल है, तो डेफिनेटली वर्क क्या होगा? एफिशिएंसी इनटू टाइम. वर्क विल बी एफिशिएंसी इनटू टाइम. So first compare the case of A and that of A plus B. So we can say that work will be A into T plus A, and that will also be equal to A plus B into T. Isn't it so? Expand करेंगे, so this will become A into T plus A into A, and that is equal to A into T plus B into T. So this will get cancelled out, और यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ ratio of efficiencies of A and B, that will be equal to T upon A. So this is our equation number 1. Similarly, let us compare these two cases, work done by B and work done by A plus B, both are equal. So by the same logic, B into T plus B will be equal to A plus B into T. Okay. So BT plus BB is equal to AT plus BT, and this time BT will get cancelled out, and equation will be A by B का efficiency का ratio will be small b upon T, and this is our second equation. Now we compare these two equations. So we can say that T upon A will be equal to B upon T. दोनों बराबर हो जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा T स्क्वायर इज इक्वल टू AB, एंड हेंस T विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB. और ये भी टाइम की तो वैल्यूज है, तो T का वैल्यू हमारा आ जाएगा टाइम टेकन बाई A एंड B टुगेदर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द एडिशनल टाइम्स टेकन बाई देम. प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एडिशनल टाइम्स टेकन बाई देम, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम. क्या ये पार्ट क्लियर है? इज दिस क्लियर? ठीक है. इस बात को एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहाँ पे? देखो, A is completing a work in T plus A time, B is completing the same work in T plus B time, and A and B both are together completing the same work in T time. Isn't it so? A और B T टाइम में सेम वर्क कर ले रहे हैं, बट A को A आवर्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं और B को B आवर्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं. सो व्हेन A एंड B बोथ आर वर्किंग टुगेदर, जब दोनों के दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं तो A भी T आवर्स वर्क कर रहा है और B भी T आवर्स वर्क कर रहा है. दोनों ही T आवर्स वर्क कर रहे हैं, दोनों को ही T आवर्स वर्क करना पड़ रहा है. Isn't it so? But if A is working alone, if A is working alone, तो A को कितना टाइम लग रहा है? T plus A टाइम लग रहा है. If A is working alone, then A को T टाइम तो लग ही रहा है, प्लस एडिशनल A टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है उसको, है कि नहीं? एंड इफ B is working alone, तो उसको B टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है. क्या ये बात क्लियर है? इफ B is working alone, तो फिर उसको B टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है. नाउ थिंक अबाउट इट. अब जब A और B साथ में वर्क करते हैं तो A T टाइम वर्क करता है, B भी T टाइम वर्क करता है. अब क्योंकि हमारा A और B दोनों ही T टाइम वर्क कर रहे हैं, बट व्हेन A इज वर्किंग अलोन तो B तो वर्क नहीं कर रहा, तो जो B का T टाइम का वर्क है वही सेम वर्क तो A एडिशनली कर रहा है, वही सेम वर्क तो A एडिशनली कर रहा है. तो क्या हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे कि B इंटू T विल बी इक्वल टू कैपिटल A इंटू स्मॉल a?
यहाँ पे कि कैपिटल ए एंड कैपिटल बी दीज आर एफिशिएंसी वैल्यूज, isn't it so? तो डायरेक्टली हम लिख सकते थे कैपिटल ए अपॉन बी विल बी स्मॉल ए अपॉन टी. सिमिलरली इन केस ऑफ बी, व्हेन बी इज वर्किंग अलोन, तो ए तो काम नहीं कर रहा, तो ए का काम किसको करना पड़ेगा, बी को करना पड़ेगा. तो ए का काम जो हो रहा है टी आवर्स में, दैट इज बीइंग डन बाय बी इन एक्स्ट्रा बी आवर्स. ओवर टाइम करके बी कंप्लीट कर रहा है उसका काम, क्या करे बेचारा. ठीक है, सो कैपिटल बी इंटू बी, दैट इन दिस केस विल बी इक्वल टू कैपिटल ए इंटू टी, एंड हेंस ए अपॉन बी विल बी इक्वल टू टी अपॉन बी. और बाकी तो समझ ही रहो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो के बाद में दोनों को इक्वेट करके. बट क्या ये लॉजिक समझ में आता है, क्या ये पार्ट क्लियर होता है. ओके ठीक है, इसी सेम चीज को हम एक और तरीके से देख सकते हैं. चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए हम देख रहे हैं एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. कि लेट अस से जो हम एलसीएम मेथड अपना एज्यूम करते थे, तो एलसीएम मेथड से भी इन बातों को सोचा जा सकता है. फिर क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्टली इस पर, पहले इन चीज़ों को अच्छे से समझ लें. ठीक है, एलसीएम मेथड से कोशिश करते हैं करने की. दिस विल बी टी प्लस बी एंड दिस विल बी टी प्लस ए. नाउ लेट अस से टी प्लस बी टाइम लग रहा है बी को, टी टाइम लग रहा है ए प्लस बी को, तो हम एलसीएम ले लें इन दोनों वैल्यूज का. एलसीएम विल बी टी इंटू टी प्लस बी, और ये हमारा वर्क हो गया. दिस इज इक्वल टू वर्क, एंड इफ दिस इज इक्वल टू वर्क, देन एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ जाएगा, टी इंटू टी प्लस बी डिवाइडेड बाई टी प्लस बी, यानी कि बी की एफिशिएंसी आ जाएगी टी. ठीक है, दिस इज एफिशिएंसी ऑफ बी. क्या ये बात क्लियर है, एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू टी. एंड सिमिलरली ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, टी इंटू टी प्लस बी डिवाइडेड बाई टी, विच इज इक्वल टू टी प्लस बी. तो यहां से एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी विल बी इक्वल टू टी प्लस बी. चीज़ों को जितने तरीकों से कनेक्ट करना सीखोगे उतना ज़्यादा चीज़ें बेटर समझ में आएंगी, और अल्टीमेटली तुम्हें भी मजा आएगा समझने में. ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ बी आ रही है टी, एंड एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टी प्लस बी. तो क्या यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल पाएंगे. एफिशिएंसी ऑफ ए विल बी टी प्लस बी माइनस टी, विच इज इक्वल टू बी. तो ए की एफिशिएंसी आ गई बी, और ए को टाइम लग रहा है टी प्लस ए. टाइम टेकन बाई ए इज टी प्लस ए. तो अगर टाइम टेकन बाई ए इज टी प्लस ए और एफिशिएंसी है ए की बी, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क विल बी एफिशिएंसी इनटू टाइम. और एफिशिएंसी ए की है बी, टाइम टेकन बाई ए इज टी प्लस ए, तो बी इंटू टी प्लस ए, दिस इज वर्क डन बाई ए, और यही वर्क बराबर होगा टी इंटू टी प्लस बी. क्या ये बात सही है. ठीक है, सो बी टी प्लस ए बी, दैट विल इक्वल टी स्क्वायर प्लस बी टी. सो बी टी एंड बी टी विल गेट कैंसिल आउट, एंड टी स्क्वायर विल इक्वल टू ए बी, एंड एस टी विल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ. किसी भी एक तरह से समझ लो, बेसिकली हमारा जो आंसर है, the time will be the time taken by both of them will be square root of a into b, square root of product of additional times taken by them. क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात समझ गए हो. ठीक है, तो हमने अच्छे से डिटेल में इन बातों को समझ लिया. अब क्वेश्चंस करते हैं. इनको समझने के बाद क्वेश्चन तो इजी हो जाएगा. क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1. पॉज करो वीडियो को और सबसे पहले अपने पे सॉल्व करने की कोशिश करो. क्वेश्चन कह रहा है ए अलोन कैन डू अ सर्टेन वर्क इन सम डेज while b takes 10 days more time as compared to a in completing the work. A अकेला can do a certain work in some days and b takes 10 days more time as compared to a in completing the work. If a and b are working together, they would have taken 8 days less than time taken by a alone. In how many days can a and b complete the work? कितने दिनों में और भी कंप्लीट करेंगे वर्क को. तो a का कितना टाइम लेता है पता नहीं हमको, सम डेज में करता है. b takes 10 days more time as compared to a in completing the work. Okay, and a plus b वर्किंग टुगेदर दे वुड हैव टेकन 8 days लेस देन टाइम टेकन बाई ए. अब क्योंकि हमें सारी चीज़ों को कनेक्ट करना है ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का टाइम हम एज्यूम कर लेते हैं टी. चीज़ें आसान हो जाएंगी. ठीक है, किसी और को एज्यूम करोगे तो मुश्किल नहीं होगी, बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, थोड़ी सी तो कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाएंगी. तो ए प्लस बी का अगर हम टाइम एज्यूम कर लें टी, और डेफिनेटली ए एंड बी टेक वर्किंग टुगेदर दे हैव टेकन 8 days लेस देन टाइम टेकन बाई बी ए अलोन. तो ए का वर्क कितना हो जाएगा, 8 days लेस ले रहे हैं ए प्लस बी, तो ए का वर्क आ जाएगा टाइम टेकन विल बी टी प्लस 8, time taken by A will be t plus 8, and B is taking 10 days more time as compared to A. So time taken by B will be t plus 8 plus 10. So that will be t plus 18. Now we know the values of extra times taken by A and B. तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी और नहीं रह गया. t की वैल्यू क्या आ जाएगा, t will be straight away equal to square root of 8 into 18, which will be equal to 8 into 18 कितना आएगा, this is 4 into 36. So 2 into 6, 12 hours will be time taken by A and B together. 12 hours will be time taken by A and B together. क्या ये बात क्लियर है. ओके, डन अंडरस्टूड. आंसर विल बी 12 hours. अब क्वेश्चन अगर A का टाइम भी पूछेगा तो A का टाइम आ जाएगा 12 plus 8 20 hours. B का टाइम पूछेगा 12 plus 18 30 hours आ जाएगा. इज दैट क्लियर. ठीक है, ओके. अदरवाइज जो हमने सेकंड मेथड सीखा है एलसीएम वाला, उससे भी सॉल्व कर लेंगे. ये सेम चीज उससे भी सॉल्व कर सकते हैं.
बस इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखोगे तो बेटर है कि ए प्लस बी का टाइम लग रहा है टी आवर्स का, ए का टाइम लग रहा है टी प्लस 8, बी को टाइम लग रहा है टी प्लस 18। अब हमने लेट्स से बी और ए प्लस बी का टाइम का एलसीएम ले लिया, ठीक है। सो क्या वैल्यू आ जाएगा, दिस विल बी टी इंटू टी प्लस 18। तो एफिशिएंसी ऑफ बी विल बी टी एंड एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी विल बी टी प्लस 18। तो यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। तो वर्क डन बाई ए विल बी टी प्लस 8 इंटू 18, ठीक है। टी प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 18 दैट विल बी इक्वल टू टी इंटू टी प्लस 18। ओपन कर लोगे तो 18t प्लस 8 इंटू 18 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 18t। तो 18t कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो ऐसा भी नहीं कि फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत है, फॉर्मूला याद रहेगा तो बेस्ट है, बट ये बात समझ में आ गई तो ऐसे भी सॉल्व कर ही लोगे एलसीएम मेथड से भी। ओके, क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है। एक थर्ड मेथड क्या हो सकता है कि हमें पता है कि थर्ड मेथड जो कि हमारा बिल्कुल फंडामेंटल मेथड है, एलसीएम मेथड से भी पहले जो हम स्कूल में किया करते थे उस मेथड से भी कर सकते हो, बट वो मेथड ज्यादा टिपिकल होगा तो उस मेथड से हम करेंगे नहीं। बट फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो मेथड हम अप्लाई करते तो कैसे अप्लाई करते, बिकॉज इन सम क्वेश्चंस वो मेथड भी हमें अप्लाई करना पड़ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन में तो ऐसे हो जाएंगे, बट कोई और क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ सकता है, वो भी हम एग्जाम्पल देखेंगे थोड़े टाइम बाद। तो देखो, हमें पता है कि ए का टाइम, ए वर्क कंप्लीट कर रहा है टी प्लस 8 डेज में, ओके। बी वर्क कंप्लीट कर रहा है टी प्लस 18 डेज में, एंड ए एंड बी टुगेदर आर कंप्लीटिंग द वर्क इन टी डेज। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इफ ए इज कंप्लीटिंग ऑल द वर्क या 1 यूनिट वर्क कंप्लीट कर रहा है टी प्लस 8 डेज में, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 अपॉन टी प्लस 8। सिमिलरली बी कंप्लीट कर रहा है वर्क टी प्लस 18 डेज में, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 अपॉन टी प्लस 18। और ए और बी दोनों मिलकर टी डेज में वर्क कंप्लीट करें तो दोनों की क्यूमुलेटिव एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा। दिस इज ए की एफिशिएंसी, दिस इज बी की एफिशिएंसी, और दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का एफिशिएंसी का सम कितना आ जाएगा, बिकॉज ए और बी साथ में टी डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो एफिशिएंसी का सम आ जाएगा 1 अपॉन टी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमारे जो ऑलरेडी हमने मेथड देखा हुआ है ये तो बेस्ट मेथड है, बट जस्ट इन केस कभी क्वेश्चन ज्यादा कंफ्यूजिंग हो, तुम अटक रहे हो, तो फिर सेकंड मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, P and Q together can complete a certain work in x minus 2 days. Working alone, P and Q can do the same work in x plus 2.5 days and x plus 6 days respectively. If P started the work and Q joined him after x days, in how many days the remaining work will be completed by them? तो ये डबल क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, जो ऑलरेडी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा ज्वाइनिंग लीविंग वाला खेल भी है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। पहले पॉज करके अपने एंड पे कोशिश करो इसको करने की, ठीक है। तो P plus Q together they are completing the work in x minus 2 days. Working alone, P can take x plus 2.5 days and working alone Q takes x plus 6 days. हमें कनेक्ट क्या करना होता है, P प्लस Q का जो टाइम है उससे कनेक्ट करना है हमें P और Q को कि कितना एक्स्ट्रा डेज ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा P प्लस Q का जो टाइम है दैट इज नॉट x, दैट इज x माइनस 2, x से 2 लेसर है, तो कनेक्ट करते समय हमें इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो x माइनस 2 इज टाइम टेकन बाई P प्लस Q वाइल टाइम टेकन बाई P इज x प्लस 2.5। तो डिफरेंस कितना है, -2 है 2.5, तो 2 प्लस 2.5 4.5 का डिफरेंस है। तो टाइम टेकन बाई P इज 4.5 आवर्स मोर। सिमिलरली टाइम टेकन बाई Q कितना आ रहा है, 2 प्लस 6 8 आवर्स का डिफरेंस है, तो 8 आवर्स मोर, 8 आवर्स मोर। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा इन दीज डिफरेंस ऑफ टाइम्स, ये जो P और Q का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है इनके प्रोडक्ट से हमें वैल्यू क्या मिलेगा, P प्लस Q के टाइम की वैल्यू मिलेगी विच इज नॉट x, विच इज x माइनस 2। ध्यान देना है इन बातों को, छोटी छोटी बातों का, अदरवाइज क्वेश्चन गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। सो यहां से हमें वैल्यू क्या मिलेगा, यहां से हमें x माइनस 2 का वैल्यू मिलेगा, तो वैल्यू ऑफ x माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4.5 इंटू 8 विच विल बिकम 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 था जी 6, मिल जाएगा 6। तो 6 आवर्स में P and Q will be completing the task and that is x minus 2। तो अगर x minus 2 6 है तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 आवर्स। वैल्यू ऑफ x came out to be 8 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि P started वर्क Q joined him, तो इस वजह से हमें somehow P और Q के लिए भी वैल्यूज देखनी पड़ेंगी कि उनका कितने टाइम में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसीज क्या आ रही हैं, बिकॉज अल्टीमेटली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें टोटल वर्क की वैल्यू चाहिए और P और Q की एफिशिएंसी की वैल्यू भी चाहिए है, हमें सारी वैल्यू चाहिए, ओके ठीक है। तो करते हैं, तो P के लिए टाइम टेकन कितना है 8 आवर्स प्लस 2.5 यानी कि 10.5 आवर्स, 10.5 आवर्स। और Q के लिए टाइम टेकन है 8 प्लस 6 विच इज 14 आवर्स,
14 आवर्स, तो 14 और 10.5 ये हमारी टाइम की वैल्यूज आ गई। इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 14 इंटू 2 28, नहीं काम चलेगा, नहीं चलेगा, 42 से हो जाएगा, ठीक है। सो एलसीएम हमने 42 ले लिया। एंड इफ वर्क इज इक्वल टू 42 यूनिट्स, इफ वर्क इज इक्वल टू 42 यूनिट्स, देन वी नो कि पी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और क्यू की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। पी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और क्यू की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। इज दैट क्लियर? देन पी स्टार्टेड द वर्क एंड क्यू ज्वाइंड हिम आफ्टर x days. So for x days now x is equal to 8 आवर्स में क्यों लिखा, ये डेज ही तो है, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया ना, ठीक है, बात तो समझ गए होगे, बट करेक्ट कर देते हैं उसको। 6 days और 8 days, ठीक है, x is equal to 8 days आ गया। तो 8 days तक किसने वर्क किया है, 8 days तक p has worked alone, only p has worked for 8 days. Then after those 8 days p and q both are working together. Let us say they are completing the work in n days, क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए, आंसर यही n days की वैल्यू निकालनी है, how many days the remaining work will be completed. ओके, सो 8 days में p कितना वर्क करेगा, p वर्क कर रहा है 4 इन 1 day, तो 8 days में करेगा 8 into 4 32 यूनिट्स, टोटल वर्क 42 है, तो 10 यूनिट्स वर्क हमारा रह गया, जो कि p एंड q, p की एफिशिएंसी 4 है, q की है 3, तो 4 + 3 10/7, विच इज 1 and 3/7 डेज में, 1 and 3/7 days में they will be completing the remaining work. So answer will be 10/7 days और 1 and 3/7 days. क्या ये पार्ट क्लियर है? आंसर आ जाएगा हमारा 1 and 3/7 days. Is that clear? ठीक है, ओके। और यहाँ पे भी हम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे, मतलब अपना चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, पी और क्यू का टाइम लग रहा है x-2, यानी कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है 1 डे की, 1/x-2। पी की 1 डे की एफिशिएंसी कितनी है, पी इज डूइंग वर्क इन 1/x+2.5 डेज में कर रहा है, तो एफिशिएंसी आ जाएगी 1/x+2.5, और क्यू क्या आ जाएगी 1/x+6। तो सम ऑफ दीज वैल्यूज इज इक्वल टू दिस। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा तरीका यही रहेगा। क्या बातें समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी सेम कॉन्सेप्ट पे। पॉज करो वीडियो को और अपने एंड पे पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, लैंग्वेज को पकड़ो, ठीक है, पकड़ो लैंग्वेज को, आइडेंटिफाई करो। x takes 5 days more than y and 9 days more than z to finish the work. x is taking 5 days more than y, तो y को जितना टाइम लग रहा है उससे 5 days ज़्यादा ले रहा है x, और z से 9 days ज़्यादा ले रहा है, 9 days more than z to finish a work. x and y can do this work together in the same time as z working alone. So efficiency of x and y together is same as the efficiency of z. That is also given. और हमें टाइम का रिलेशन किनका गिवन है, x का, y का और z का। तो क्या हम z को x + y की तरह ट्रीट नहीं कर सकते? अल्टीमेटली हमें जो टाइम का रिलेशन दिया है वो हम कनेक्ट तो तभी कर पाते हैं व्हेन x is working in one case, y is working alone in second case, and in third case both x and y are working, and when we know that z का efficiency is nothing else but x and y का efficiency only, तो we can say कि z को जितना टाइम लग रहा है वही सेम टाइम हमें x और y को भी लगेगा साथ में, isn't it so? So time taken by z is as good as time taken by x + y. So let us assume time taken by z is equal to t. t टाइम लग रहा है, तो x को टाइम कितना लगेगा, 9 hours extra, which is t + 9. And since we know that time taken by y is 5 hours lesser, भाई y से 5 hours ज्यादा लग रहा है x को, तो y को 5 hours कम लगेगा, यानी कि t + 9 - 5. So t + 4 days will be taken by y. तो ये हमारी वैल्यूज हमें मिल गई। अब तो सॉल्व हो जाएगा, t की वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है x को 9 hours और y को लग रहा है 4 hours, तो t will be equal to square root of 4 into 9, so that will be 6 hours. So time taken by z or time taken by x and y together, that is 6 hours. Okay, then question is asking in how many days can y and z complete the work if z is joined y after 2 days. तो सबसे पहले वर्क तो पता करें कितना होगा, वर्क तो पता करें कितना होगा। तो टाइम टेकन बाई x कितना है, x को टाइम लग रहा है t + 9 विच इज 15 hours, टाइम टेकन बाई y कितना है 6 + 4 10 hours, and time taken by z or x + y, that is 6 hours. So LCM of these values will be 30 LCM आ जाएगा, x की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, y की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और z की एफिशिएंसी आ जाएगी 5. Then question is saying how many days
can y and z complete the work if z joined y after 2 days? तो y has worked alone for 2 days. 2 days के लिए y has worked alone, and then for some days y and z both have worked together. तो 2 days में y ने कितना वर्क किया होगा? 2 into 3, 6 यूनिट्स, एंड क्योंकि टोटल हमारा 30 यूनिट्स वर्क है, तो रिमेनिंग वर्क विल बी 24 यूनिट्स, एंड नाउ बोथ y and z आर वर्किंग टुगेदर, तो 3 + 5 एफिशिएंसी इनका एड अप हो जाएगा, तो दे विल बी कंप्लीटिंग द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज. रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करेंगे 3 डेज में. बट क्वेश्चन क्या पूछा है? इन हाउ मेनी डेज कैन y and z कंप्लीट द वर्क? तो पूरे कंप्लीट वर्क के बारे में बात कर रहा है, कंप्लीट वर्क के बारे में बात कर रहा है, तो आंसर विल बी 2 डेज. तो इनिशियली y ने अकेले काम किया है, बाद में 3 डेज में वर्क कंप्लीट हुआ है, तो आंसर विल बी 2 + 3 5 डेज. छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है. क्वेश्चन नॉट आस्किंग इन हाउ मेनी डेज विल दे बी कंप्लीटिंग द रिमेनिंग वर्क, कंप्लीट वर्क कितने टाइम में करेंगे, ठीक है. सो दैट विल आंसर विल बी 5 डेज ओनली. आंसर विल बी 5 डेज. इजंट इट सो? क्लियर है? ठीक. तो आंसर इन दिस केस विल बी 5 डेज. सबसे क्रिटिकल पार्ट क्या था इस क्वेश्चन में? ये आइडेंटिफाई करना कि क्योंकि z का एफिशिएंसी x + y के इक्विवेलेंट है, तो वी कैन कंपेयर इट, कि ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि जितना टाइम z को लग रहा है, एज्यूम क्या कर सकते हैं, ये फैक्ट है, जितना टाइम z को लगेगा उतना सेम टाइम x + y को भी लगेगा, बिकॉज एफिशिएंसी सेम है, दैट इज वाई. और फिर उसके बाद में इक्वेट करना आसान हो जाता है. अदरवाइज इस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा वेस्ट करोगे. अगर इतनी सी बात क्लिक नहीं की तो फिर इस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा वेस्ट करोगे. क्या ये बात क्लियर होती है? ओके, ठीक. तो इतना ही रखते हैं इस सेशन में. आई बिलीव सेशन में जो भी बातें डिस्कस की वो समझ आई होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और सारे के सारे क्वेश्चन तुमसे अटेम्प्ट हुए होंगे. इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट द डाउट, एंड इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू लाइक द सेशन एज वेल, और प्रेस द लाइक बटन एज वेल. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.